some examples of equilibrium calculations. Now, this is the example, and as usual, if you already know the examples in the book are usually too easy compared to what's given in the past papers, but it's the easiest one that we can pick up from. So let's get started. This example is pretty easy. You're already familiar with what or how esters are formed or what esterification is. This is the simplest esterification reaction that we have discussed back in IGCSE. Okay, इस calculation में हमारे पास number of moles given होते हैं reactant to product के. We have an equilibrium reaction in front of us. Sometimes the reactions are already balanced in the question, so you don't have to go for a prerequisite. If they aren't, you can go ahead and balance it up, right? और आपने बस उनकी amounts को consider करना होता है. For example, in this specific case, they have instead given the amount in moles. They've done it a little bit differently in some cases. Okay, 500 cubic centimeter of reaction mixture. This is the example. Ethanoic acid is reacting with ethanol, giving ethyl ethanite and water, an example of esterification that we are most familiar with. Okay, now 500 cubic centimeter of reaction mixture is there, and the equilibrium contained this many moles of ethanoic acid, this many moles of ethanol, with this many moles of ethyl ethanite, and same number of moles of water. Okay, use this delta to calculate the value of Kc for this reaction. So what we are going to do is that we write the balanced chemical equation and we write the concentrations beneath each substance. So in order to find out their concentration, what we do is that we divide the number of moles divided by per its volume, the mole concentration formula that we have been working all along with. So हम उसमें values put कर देते हैं, and then ahead of it is pretty easy. Mole per decimeter cube में हमारे पास concentration ethanoic acid की, ethanol की, ethyl ethanite या एसिड की और water की हमारे पास आ जाती है. वो सारी concentrations आ जाती हैं, ठीक है. फिर हमें यह करना है कि फिर हमें इसके ऊपर चीजें मेंशन कर देनी है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिख देते हैं. वी मेंशन एवरीथिंग, ठीक है. और फिर हम उससे किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इट्स प्रीटी इजी अप टू दैट एक्सटेंट. ठीक, हम करेक्ट करेंगे यूनिट्स बाय रेफरिंग बैक टू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. तो यूनिट्स मोल पर डेसिमीटर क्यूब कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो केसी की कोई यूनिट्स नहीं है. रिमेंबर, अगर आपके पास मोल पर डेसिमीटर क्यूब में ये वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, तो ऑफ कोर्स इसके मोल पर डेसिमीटर क्यूब इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसके मोल पर डेसिमीटर क्यूब इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे. तो आपके पास नेट आंसर में कोई यूनिट्स नहीं आते. तो किसी में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास मोल पर डेसिमीटर क्यूब या उसके कोई मल्टीपल्स में यूनिट्स आ जाएं. ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास मोल इनवर्स और डेसिमीटर क्यूब प्लस में हो. एक्चुअली आई शुडंट बी राइटिंग इट लाइक दिस, फिर डिवाइड का साइन नहीं आएगा. मोल इनवर्स और डेसिमीटर क्यूब प्लस में हो, ठीक है. या हमारे पास ये भी हो सकता है, इसे दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है सारी चीज को. ओके, इसे यूं की बजाय यूं मुझे पुट अप कर देना चाहिए कि ये डेसिमीटर क्यूब पर मोल भी हो सकता है, यूं भी और यूं भी, ठीक है. And then simply it can have no units. जब no units होते हैं तो हम we actually repeat the words right over there so that the examiner would know that there are no units, because the units probably have been already cancelled out, like the example I told you about. ठीक, तो बुक ने भी यही किया हुआ है, no units mention किया हुआ है, तो केसी की वैल्यू 4.03 आती है. अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन टॉप और बॉटम हो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, तो आप मोल्स यूज कर सकते हैं rather than concentration, mole per decimeter cube calculation. So this is something that can actually make you really quick. Okay, in all other cases, if volumes are given, the concentrations must be calculated before they are substituted into the equilibrium expression. जहां पर आपको exactly पता हो कि यूनिट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर तो आप नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते. और वो कहां पर होता है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स टॉप और बॉटम पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के, या सिंपली स्पीकिंग जब आप इक्वेशन देखते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, या ये भी वन है. तो ओवरऑल इसका समड अप टोटल 2 है और इसका समड अप टोटल भी 2 है. तो इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो आप ये काम मोल्स में भी कर सकते हैं. तो इवन इफ यू हैव डिवाइडेड इट बाय नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप ऐसा ना करते, सिर्फ ये वैल्यू लेते, ये वैल्यू लेते, ठीक है, ये और ये वैल्यू लेते उसी तरह से, तो ऑफ कोर्स ये दोनों प्रोडक्ट है, ये ऊपर आ जाते. एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड के प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होते हैं,
ठीक है केसी में, और रिएक्टेंट्स हमेशा नीचे होते हैं केसी में। तो अगर हम एग्जैक्टली ये वैल्यूज भी कोड कर देते 0.182 इंस्टेड ऑफ दिस, 0.182 इंस्टेड ऑफ दिस, 0.235 इंस्टेड ऑफ दिस एंड 0.035 इंस्टेड ऑफ दिस, तो भी आपके पास एग्जैक्टली यही आंसर आता, चेंज ना होता, बिकॉज इट्स मैथ्स। मैथ्स में यही होता है कि आपके पास सेम फिगर से मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो मल्टीपल से एक्चुअली इक्वेशन पे कोई असर नहीं होता। So that's what he is talking about. So as soon as you see a balanced chemical equation and total number of moles of reactants are equal to total number of moles of product, you come to know that you can do it without converting them into their concentration. Okay? So moving on, number 5. Can we move on to 5? कोई questions नहीं है 4 से? No, sir. All right. Okay. Number 5. In an example, we are only given the initial concentration of reactants and equilibrium concentration of the product. ऐसे सूरत में हमें क्या करना होगा? This is one of most common questions. वो जो ऊपर वाला question है ना, that is too easy. That is childish. सारी की सारी चीजें बता दें, आप बस उसके अंदर values put करें और आंसर निकाल लें. It's actually more like a division question. और ऐसे questions तकरीबन नापैद होते हैं A levels में. हमें actually में ऐसे questions मिलते हैं जो हमें थोड़ा सा tough time दे सकें. ठीक है, इफ नॉट मच एटलीस्ट थोड़ा सा टफ टाइम तो जरूर दे सकें। तो हमारे पास प्रोपेन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, प्रोपेनॉन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एंड इट गिव्स अस द प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने सब मेंशन कर दिया है। मिक्सचर 0.05 मोल पर डेसिमीटर क्यूब प्रोपेनॉन, 0.05 मोल पर डेसिमीटर क्यूब हाइड्रोजन साइनाइड। इसको हम लेफ्ट पे रिएक्ट कर देते हैं कि इक्विलिब्रियम पे चला जाए, ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की ये है, ठीक, उसने मोल पर डेसिमीटर क्यूब में बता दिया, कैसे कैलकुलेट करें। Okay, let me remind you the purpose of writing these is actually to go through as high as 3 or 4 significant figures. तो ये जो बाकी जीरोस होते हैं ये इसलिए लिखे जाते हैं। बुक का लिखने का ये पर्पज हो रहा होता है कि अगर आपके पास आपका आंसर लेट्स सपोज ये आ रहा है तो आप वहां पर आंसर ये लिखकर छोड़ के नहीं आ जाएंगे। रिमेंबर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल। अगर वो बुक में ये 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर रूल को कॉपी कर सकता है तो वो आपको अपने आंसर में भी कैम्ब्रिज के करना है। ये ना हो 0.5 आए तो लिख कर आ जाए, उसे पूरा करके आए। ठीक है, so I hope you understand the point that if book is doing something on purpose, you might have to follow the same habit as a part of your answers in Cambridge papers. So moving on, अब क्या करेंगे आप? ये जो तरीका यहाँ पर समझाया जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करने का एक वर्ल्ड वाइड मेथड है। ठीक है, और ये मेथड आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में रिपीट होता है। So please pay attention if you're going to partner. This is going to turn out really well for you to making capable of doing all of your questions correctly, almost all of them. ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि हमेशा एक क्वेश्चन ऊपर लिखी जाती है, हमारे पास लेफ्ट पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखी जाती है। ठीक है, ये इसी तरतीब से आया रहेगा। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्विलिब्रियम क्वेश्चन दिए ही इस तरह से जाते हैं कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बताई जाती है। वो उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताई थी 0.05 प्रोपेनॉन, 0.05 sorry, no, yeah, 0.05 hydrogen cyanide. This must be a mistake in the book. देख रहे हैं, ये इसने ठीक किया हुआ है लेकिन ये गलती से लिखा हुआ है। दिस मस्ट बी अ मिस्टेक। लेकिन अगर अब आप ऊपर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गलती से मिसप्रिंट हुआ हुआ है। बुक करेगा इसे बाद में इसी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि उसने यहाँ पर भी इसे 0.05 लिया हुआ है। तो इट्स जस्ट अ टाइपिंग एरर, ये है 0.05 ही। ओके, तो मूविंग ऑन, ये तो बुक की मिस्टेक थी, इसलिए कर रहा था ये 0 होगा। रिमेंबर, जब इनिशियली हम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं एक रिएक्शन मिक्सचर में, उस वक्त कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होता। तो अल्टीमेटली एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स इन दिस लाइन टू फिल दिस लाइन अप इज 0। जब तक आपको कोई ऐसा सिनेरियो ना दिया जाए कि दो रिएक्टेंट्स के साथ हमने प्रोडक्ट भी खुद से डाला है किसी रिएक्शन मिक्सचर में, तब तक इसकी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टफ जहां पर आप जस्ट रिएक्टेंट्स मिक्स अप करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, प्रोडक्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली 0 होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उसने प्रोडक्ट की बताई हुई है और उसने रिएक्टेंट्स के लिए वो चीज छोड़ दी है।
ये हमने खुद कैलकुलेट करनी है. हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? ठीक है, इट्स वेरी इजी. टेक अ लुक एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इट द इजी वे, फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे और उसमें फैक्टर्स आया करेंगे, हम वो भी इसके अंदर अप्लाई करना शुरू कर देंगे. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होंगी? केमिकल इक्वेशन ये शो करती है कि हर मोल ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसमें 1 मोल ऑफ प्रोपेनॉन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड कंज्यूम हो जाते हैं. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से होनी चाहिए कि जितना अमाउंट प्रोडक्ट की फॉर्म हो रही है एग्जैक्टली उतनी माइनस होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी एट इक्विलिब्रियम. इट्स एज सिंपल एज दैट. सिंस ये भी वन था, ये भी वन था, ये भी वन है, तो जितने ये कंबाइन होते हैं उतना ही ये फॉर्म होता है. तो आपके पास जितना ये फॉर्म हुआ होगा वो माइनस कर लेगी तो इसका आंसर आ जाएगा. ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा. तो हमने इसमें से भी ये वैल्यू माइनस कर दी, हमने इसमें से भी ये वैल्यू माइनस कर दी, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी ओवर हियर. So it's pretty clear that at equilibrium, propanon's value would be 0.0267 mole per decimeter cube after, of course, subtracting 0.05 and 0.0233. And the same goes for hydrogen cyanide. Okay? I want to make sure that you both understand this step. So can I move further? Or do you have any questions from this step? No, sir. Okay. Sir, can you explain this again? My Wi-Fi was not working and your voice was lagging. Okay, no problem. I was simply saying कि अगर यहाँ पर equations 1, 1 और 1 हैं, तो it's pretty simple and straightforward कि 1 mole of propanone and 1 mole of hydrogen cyanide is consumed to produce 1 mole of our product. Now, if the amounts are same, so this much amount of the product has been formed. If we're going to subtract 0.05 minus 0.0233 over here, and if we're going to subtract 0.05 minus 0.0233 over here, it would give us the answers of concentration of, at equilibrium for both propanone and hydrogen cyanide. And that's what he has done over here. क्योंकि एक और एक फॉर्म होता है और एक ही बनता है, तो हमारे पास वो वैल्यू बड़ी इजीली सब्ट्रैक्शन से आ जाती है. द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक कि जब आपके पास सिंपल नंबर्स होंगे 1 1 एंड 1, तो आप इन्हें यहाँ सेम नंबर्स होंगे 1 1 एंड 1, लेट्स से 2 2 एंड 2, 3 3 एंड 3. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में हो सकता है और चीजें भी हो जिन्हें आप उस वक्ती तौर पे ना कंपेयर कर रहे हो, जस्ट इन्हें कंपेयर कर रहे हो, तो आप इन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. For similar numbers, subtraction is the best way to get the concentration at equilibrium for the reactants that you want to. हाँ, अगर ऐसा होता कि ये 2 2 होते और ये 1 होता, तो हमारे पास फिर फैक्टर स्लाइटली चेंज होते हैं. अभी तो मैं 1 1 और 1 पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी वो डिस्कस नहीं कर रहा. हाँ, जब आपके पास डिफरेंट बैलेंसिंग नंबर्स होंगे तो हम उन्हें डिफरेंटली हैंडल करेंगे. हाउ वुड वी हैंडल देम? आई एम गोना केटर इट अ लिटिल लेटर. ठीक है, वो भी जरूर केटर करेंगे. ओके, so I hope this is Okay, understandable. sir. This is simple subtraction. So let's move on. हमारे पास स्टेप 3 ये था कि हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखना होता है. तो इट्स प्रीटी इजी. ऊपर आप प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे आप रिएक्टेंट्स लिखते हैं. उन्हें हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं वो डिपिक्ट करती हैं मोल पर डेसिमीटर क्यूब. तो आप इसे हमेशा इन्हीं ब्रैकेट्स में लिखेंगे. रिमेंबर, ये ब्रैकेट्स डिपिक्ट कर रही होती हैं कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब, और इसके अलावा कोई और ब्रैकेट ये कॉन्सेंट्रेशन डिपिक्ट नहीं करती. नेवर यूज एनी अदर ब्रैकेट्स. एज आई स्टेटेड अर्लियर, आपके पास प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर आया करेंगे, आपके पास रिएक्टेंट्स हमेशा नीचे आया करेंगे. तो हमने वैसे केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया. ठीक, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर थी वो लगाई, रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बनती है वो लगाई. हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एक आंसर आ गया. अब यूनिट्स कैलकुलेट करने, इसके ऊपर मोल पर डेसिमीटर क्यूब है, नीचे 2 मोल पर डेसिमीटर क्यूब है, ईच सेपरेटली फ्रॉम द इक्वेशन. इस ब्रैकेट का मतलब ये है, तो एक और एक कट आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऑपोजिट यूनिट्स, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आ सकते हैं कि मोल इनवर्स और डेसिमीटर पॉजिटिव में आ जाए क्यूब. ठीक है, तो वैसे यूनिट्स हमारे पास आ गए. तो केसी की ये वैल्यू है और ये यूनिट्स हैं. रिमेंबर, केसी के एक्सप्रेशन सेपरेटली लिखा जाता है, सेपरेटली कैलकुलेट की जाती केसी की वैल्यू, और हम यूनिट सेपरेटली निकालते हैं. तो दीज आर 3 सेपरेट स्टेप्स.
So first of all, we need to know what the values we're going to put into Casey's equilibrium expression. फिर हम expression लिखते हैं, फिर values put करके Casey का आंसर निकालते हैं और separately units calculate करते हैं. So this is something that we are done with before. इसे step 2 को छोड़कर, ठीक है, step 3, 4, 5 तो हमने पहले भी किया हुआ है. So I hope you're familiar with that. ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं. इस एग्जाम्पल में इनिशियल और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की दी हुई हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की नहीं बताई. अब एक और तरीका है ट्रिक करने का बच्चों को, ठीक है. इट्स द सेम इक्वेशन बट इट्स दिस टाइम इज रिवर्स्ड. हमारे पास इथाइल एथेनोएट और वाटर रिएक्टेंट्स हैं, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल प्रोडक्ट्स हैं. सिंस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप इसे जिस भी साइड से स्टार्ट करना चाहें और लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है. 0.1 मोल इथाइल एथेनोएट ऐड किया गया 0.1 मोल ऑफ वाटर में. A little acid catalyst is added. मिक्सचर को 1 डेसीमीटर क्यूब तक पूरा किया हमने इनर्ट सॉल्वेंट के साथ. इनर्ट सॉल्वेंट मींस nothing apart from these is going to interact in it. ठीक है, this is what it means, which means in calculations we are only going to consider these four and not the solvent itself. ठीक. So at equilibrium हमारे पास 0.0654 moles of water present हैं. Kc का रिएक्शन हमने Kc फाइंड आउट करना है. अब अगेन आप यही काम करेंगे, इक्वेशन लिखें, बैलेंस आउट कर दें, उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लेफ्ट पर मेंशन कर दें. इनिशियल के लिए वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी 0.1 0.1 हमने वो कोट कर दिया. रिमेंबर इनिशियल में प्रोडक्ट्स जितनी भी हो सब जीरो आती हैं तो हमने 0 0 कोट कर दिए. क्वेश्चन में हमें सिर्फ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है तो हमने वो लिख दी, बाकी कुछ भी नहीं पता. तो दिस particularly means कि हमें यहाँ पर ये और ये फाइंड आउट करना है. इससे पहले कि हम फिर से केसी के एक्सप्रेशन लिखें, फिर केसी की वैल्यू निकालें और फिर केसी के यूनिट्स निकालें. रिमेंबर, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा जाता है, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर इसके यूनिट्स फाइंड आउट किए जाते हैं. तो एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम वैल्यू तब तक नहीं डाल सकेंगे जब तक ये 3 इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ना हो. So that's why in step 2 we are going to find these three before we move on to step 3. ये हमारा step 3 होता है, ये पिछली मर्तबा भी हमारा step 3 था. ongoing फिर हमारे पास ये step 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, so on and so forth, यूं हो जाएगा. ठीक है, तो since we already know कि हमने आगे क्या करना है तो हम step 2 पे आते हैं, which is the tricky part. ठीक है, उसको देखते हैं. हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये शो करती है कि 1 मोल ऑफ एस्टर प्लस 1 मोल ऑफ वाटर गिव्स अस 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ अल्कोहल. ठीक, उसने वही बात यहाँ पे लिखी हुई है. अगर हमारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वाटर की 0.0654, तो जितनी अमाउंट वाटर की है एट एनी पॉइंट बिफोर और आफ्टर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हमारे पास एस्टर की वैल्यू जब तक एक्सटर्नली कुछ चेंज नहीं किया जाता वो सेम रहती है. क्योंकि ये भी 1 से बोल से स्टार्ट होता तो ये भी, अगर ये 0.1 था तो ये 0.1 था, अगर कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे ये 0.654 है तो अल्टीमेटली ये भी 0.0654 होगा. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द सेम थिंग. तो आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू भी अल्टीमेटली 0.0654 है. ठीक, with the same units of course, mole per decimeter cube. I'm just going to put as is over there. Okay, तो अब amount of water है. Equal numbers में हमारे पास अच्छी बात ये है कि हमारे पास जहाँ इनकी वैल्यूज गिवन हो इससे माइनस तक ये आंसर आता था, तो ऑफ कोर्स इनको और इनको माइनस कर देंगे तो ये वाले आंसर्स आ जाएंगे. तो इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ये वाला आंसर भी हमारे पास 0.1 माइनस 0.0654 है. ठीक है, और ये वाला आंसर भी हमारे पास 0.1 माइनस 0.0654 है. ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है. तो दिस इज द आंसर टू दिस वन एज वेल एज टू दिस वन. ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज भी 1 और 1 है. इफ दे हैव द सेम नंबर्स ओवर हियर दे विल प्रोबब्ली वाइंड अप विद सेम वैल्यूज ओवर हियर टू. ठीक, तो अगर ये हो जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यूज बन जाती हैं. बुक ने वही चीजें यहाँ मेंशन कर दी हैं जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई हैं. लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 3. आप प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं, वैल्यूज मेंशन कर दें, केसी का आंसर आ जाएगा. ठीक है,
आप सारे यूनिट्स कैंसिल आउट करेंगे तो केसी नो यूनिट्स के साथ 0.288 आ जाता है. Are we clear with this kind of question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Let's move on. ठीक है. अब the bad part about the book is कि book हमें ये नहीं बताती कि जो है ना आपने अगर different numbers के साथ equation balance हुई हुई है तो क्या करना है. ठीक है. उन्होंने एक क्वेश्चन दिया जो उन्होंने बड़ा सिंपल 1111 वाली इक्वेशन वाला दे दिया है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस बता दी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बता दी, आपको आइडिया हो जाएगा. लेकिन देन ऑनवर्ड्स उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है. ठीक है. और उसके लिए उन्होंने डिस्कस किया है, तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी पूछी हुई है उन्होंने. ठीक है. तो वो हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक. तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है. ठीक. इसको भी डिस्कस करते हैं अभी. सही. आई एम जस्ट गोइंग टू मूव अहेड अ लिटिल. ठीक. इसको हम इंशाल्लाह, मैं अभी इसे खुद जानबूझ के रख रहा हूँ टू बी डिस्कस इन पास्ट पेपर प्रैक्टिस. ठीक है. वहां पर मैं कुछ सर्टेन एग्जांपल्स के साथ इसे डिस्कस करूंगा. इसे यहाँ पर जस्ट एक क्वेश्चन के लिए बता देना इसे जस्टिफाई नहीं करता. तो लेट्स कीप दिस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन पास्ट पेपर प्रैक्टिस. इससे कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से प्रैक्टिस करवाऊंगा. ठीक है. इंटेंशनली बिफोर यू बिगिन टू सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चन. ओके. तो की स्टेजेस हमारे पास इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन में क्या? राइट एन इक्वेशन. इंस्टेड आई ऑलवेज से राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. उसके बाद इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेशन की होंगी. रिमेंबर, एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है. ठीक. रिड्यूस करें कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, चाहे वो रिएक्टेंट्स की करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की. ठीक है. फिर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बारी आती है, फिर वैल्यू ऑफ केसी और फिर यूनिट्स ऑफ केसी. राइट. ओके. Kc and concentration changes. Okay. अगर सारी की सारी conditions constant रहें, value of Kc, concentration of reactant और product से alter नहीं होती. ठीक है. Before I move further with this, मैं थोड़ा सा इसे वापस ले जाना चाहूंगा. I want to make sure कि हम एक point पहले study कर चुके हैं. Since उसी point पे यहाँ पर prove किया जा रहा है, तो मैं वो उसे match करना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं. ठीक है. Just a minute. Okay. ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पहले पढ़ा हुआ था, वो पार्ट दोबारा आ रहा है. हम उसे प्रूफ करने जा रहे हैं. बिफोर वी डू, लेट्स रिवाइज. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे वो केसी का हो, केपी का हो, ये विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर आएगा और ये गैसेस के लिए होगा सिर्फ. ठीक है. इसे आप आगे चल के कर रहे होंगे वन स्टेप एट अ टाइम. उसकी वैल्यू सेम रहती है अगर आप चेंज करें कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की, डज नॉट मैटर. प्रेशर फॉर एनी गैस, हीटर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या ऐड करें कैटलिस्ट. तो अब जो हम पढ़ने लगे थे उसमें वो ये प्रूव कर रहा था कि केसी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन से या कैटलिस्ट से चेंज नहीं होती. बट इन केस ऑफ टेम्परेचर चेंज, केसी की वैल्यू जरूर अफेक्ट हो सकती है. तो ही इज गोइंग टू प्रूव कि कॉन्सेंट्रेशन वगैरह से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर से चेंज हो सकती है. तो ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, हम सिर्फ इसे प्रूव करने जा रहे हैं. तो कीप इन माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर वगैरह कुछ भी आएगा, किसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी. हम ये प्रूव कर रहे हैं और साथ में ये प्रूव कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज पर उसकी वैल्यू प्रूव हो सकती है चेंज. तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट. केसी और कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस. अगर सारी कंडीशंस कांस्टेंट रहें, वैल्यू ऑफ केसी चेंज नहीं करती जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की ऑल्टर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक रिएक्शन है 500 केल्विन पे. इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है ये वाली. जब मोर हाइड्रोजन आयोडाइड हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिक्रीज करेंगी. रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम, इन दोनों की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ली शेटलियर्स प्रिंसिपल, नथिंग एल्स.
The Shetland principles already tells us that the system tries to oppose the change as far as possible or to nullify the change as far as possible, जितना वो कर सकता हो, ठीक है, तो सिस्टम करता है, तो हमारे पास केसी की वैल्यूज दोबारा चेंज हो जाएंगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर होंगी वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशन की, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की, और आप नोटिस करेंगे कि वंस अगेन द वैल्यू वुड बी 6.25 into 10⁻³ क्यों? क्योंकि एक ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से बाकी सारों की कॉन्सेंट्रेशन भी एज पर दी शर्टलियर्स प्रिंसिपल रीएडजस्ट होती है। तो अगर इसमें सिर्फ एक वैल्यू चेंज होती, ठीक है, और बाकी ना होती, तो ऑफ कोर्स केसी की वैल्यू बदल जाती। क्योंकि वो सारे रीएडजस्ट होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, तो सारी चेंजेस ऑटोमेटिकली नलिफाई होके आपके पास आंसर फिर वही आ जाता है। So to be simple and straightforward, केसी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से केसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मूविंग ऑन, प्रेशर चेंजेस, डिफरेंट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हर साइड पर होते हैं इक्वेशन के। चेंज इन प्रेशर ऑल्टर करता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पे फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। लिहाजा अगर बाकी सारी कंडीशंस कांस्टेंट रहें, वैल्यू केसी की चेंज नहीं हो सकती प्रेशर के ऑल्टर होने पे। व्हाई? बिकॉज इट वुड गेन रीएडजस्ट इन सच अ वे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वो दोबारा रीएडजस्ट करेगा टू नलिफाई दैट चेंज, और फिर जो हमारे पास नए नंबर्स आएंगे वो फिर ऐसे होंगे कि केसी का आंसर वैसे का वैसा आ जाएगा। वो कि आगे चल के हम आपको ये डिफाइन करेंगे कि हम केसी नहीं केपी यूज करते हैं गैसेस के केस में, प्रेशर के केस में, बट इससे अगर इस तरह से वो बता रहे हैं समझा रहे हैं तो ये बात अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम केसी भी कर रहे हो तो भी उस पर प्रेशर से कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब बारी आती है टेम्परेचर की। हमने सेक्शन 8.2 के लिए ऑलरेडी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में बता दिया था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट करता है रिएक्शन को इन डायरेक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है, मोर प्रोडक्ट जिसका मतलब है, तो कोई एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, मसलन ये वाला रिएक्शन है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन H2I2 की इंक्रीज करेंगी, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन HI की फॉल करेगी, ठीक है। अब अगर हम इन चेंजेस को देखें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि H2 और I2 इंक्रीज कर रहे हैं, HI डिक्रीज कर रहा है, एज अ होल सारी की सारी केस की वैल्यू चेंज हो रही है। उसने बाकायदा दिखाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, और आप अंडरस्टैंड उससे कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है केसी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात थी। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई दिस इज सो, तो डोंट वरी, व्हाई भी हम क्लियर करते हैं, लेकिन अभी तक एंडोथर्मिक की बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि दोनों रिएक्शंस में क्या होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, उसमें टेम्परेचर का जो इंक्रीज होता है वो शिफ्ट करता है रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कांटेक्ट प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हुए हैं, देख चुके हुए हैं। कॉन्सेंट्रेशंस SO2 की और O2 की इंक्रीज करेंगी और SO3 की फॉल करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये किस तरह से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेंगी? ओवरऑल केसी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी टेम्परेचर के डिक्रीज करने से, ठीक है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, और वाई का क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स हमने आंसर करना है, और एक ये वाली कंफ्यूजन भी आंसर करनी होती है हमें मोस्ट कॉमनली कि सर वैल्यू तो H2I2 के साथ HI की भी चेंज हो रही है, तो पीछे जब सारी वैल्यूज चेंज होती थी रीएडजस्ट होके वही आंसर आ जाता था, यहाँ जब वैल्यूज चेंज होती हैं तो रीएडजस्ट होके वो आंसर क्यों नहीं आता, ठीक है, जबकि वो ऑपोजिटली चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। मसलन H2I2 की अगर इंक्रीज कर रही है तो HI की डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो फिर ये इससे फर्क कैसे पड़ सकता है जब ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं? लेट मी टेल यू, इट्स बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये बड़ा डिफिकल्ट सा सिनेरियो है, इससे समझना ये चीज बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आई एक्चुअली टेक सिंपलर नंबर्स टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास शुरू में कॉन्सेंट्रेशन थी 3, 3, और लेट्स सपोज ये थी 6, ठीक है। तो हम इस तरह से लेकर चल रहे थे इसे, ठीक है, इस तरह से लेट्स सपोज, और उसके बाद हमारे पास नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम कर रहे हैं,
तो ये आपके पास 5, ये आपके पास 5 आ जाता है, और ये आपके पास उसी तरह से डिक्रीज करके 4 हो जाता है। तो अगर आप सिंपल मैथ्स के हिसाब से भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप नोटिस करें कि इसी की वैल्यू बढ़ रही है। रिमेंबर, जब दो चीजें हम यूं ले रहे होते हैं ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आपने ये आंसर्स मल्टीप्लाई से करके देखने हैं, आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाए कि दिस विल कम आउट टू बी दिस एंड दिस विल कम आउट टू बी दिस। मैं अगर ये -3 हटा दूं, तो मैं इससे थोड़ा थोड़ा क्लोज वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ आ जाएगी कि मैथ्स में अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा हो, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा हो, तो पूरा आंसर एक हायर नंबर की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। एक्चुअली में या तो सारे इंक्रीज हो रहे होते ना, तो मे बी हम सेम वैल्यू पे चले चले भी जाते, या सारे डिक्रीज हो रहे होते तो भी हम शायद सेम वैल्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से तो हम सेम वैल्यू करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऊपर वाले बढ़ते चले जाएंगे और नीचे वाला छोटा होता चला जाएगा, मैथमेटिकली स्पीकिंग द होल आंसर इज गोइंग टू बी अ समथिंग बिगर देन द प्रीवियस फ्रैक्शन। एंड अगर एक्सोथर्मिक के हिसाब से बात की जाए, द होल आंसर इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर स्टेप। वाई? क्योंकि हम ऊपर वाली वैल्यू को अगर डिक्रीज कर रहे हैं और नीचे वाली वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, और न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़े होते जाएं, तो आपके पास और छोटे आंसर्स आते चले जाते हैं। तो एक्चुअली जो इसने कंसिडर किया है, और इसने दोनों मरतबा टेम्परेचर का इंक्रीज कंसिडर किया है। आपके पास इंक्रीज डिक्रीज कोई भी सिनेरियो हो सकता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कोई भी हो सकता है। द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक, टेम्परेचर की वजह से केसी की वैल्यू हमेशा चेंज होती है। ठीक है, तो अगर केसी कहीं पर कांस्टेंट रखना होता है उन्होंने, तो याद रखें वो ऐसे क्वेश्चंस में ये सिनेरियो डिफाइन करते हैं कि वहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा गया, या जो वैल्यू थी, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया गया। कांस्टेंट मीन्स ये नहीं है कि वो जो ना कहते हैं हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट मीन्स ये कि जो वैल्यू कंसिडर की गई है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, और विद द चेंजेस, सेट ऑफ चेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, so I hope this explains it. If there are any questions, let me know before I move to the next part, because this pretty much sums up Casey. Sir, it's clear. Okay. I hope आपके लिए भी clear है. Okay. So 8.4. Since we have time, we can finish up KP. KP भी easily हो जाएगा. ओके, इससे पहले एक छोटी सी बात, ठीक है, हमारे पास इससे पहले पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस में नहीं था, लेकिन एक आधी जहाँ पे जहाँ स्टेट ऑफ मैटर आया, वहां पे मैंने, आपको याद होगा कि पार्शियल प्रेशर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, और वो ये था कि जब आपके पास, ओके, कैन यू हियर मी नाउ? Sorry, my connection got a little bit unstable. All right, so getting back to it, ठीक है, मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि आपके पास पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में वो पोर्शन हमने नहीं डिस्कस किया हुआ, बट देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने उसके लिए वो बताया था। पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर क्लियर किया जा रहा होता है, और आपको बताया जा रहा होता है कि इंडिविजुअल गैस प्रेशर क्या होता है। रिमेंबर द वर्ड पार्शियल प्रेशर एक्चुअली हियर स्टैंड्स फॉर एन इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन अ मिक्सचर। ठीक, तो अगर वो कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं भी समझ आया था, डोंट वरी, बिकॉज यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट हियर। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिनमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, इट्स इजी कि आप मेजर करें प्रेशर कंसंट्रेशन की बजाय। टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर उस मॉलिक्यूल की वजह से होता है जो बम्बार्ड कर रहा होता है, या फियर्सली जाके कोलाइड कर रहा होता है वॉल्स ऑफ कंटेनर या लिड ऑफ कंटेनर के साथ। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर each gas in a mixture contributes to the total pressure,
और उसका कंट्रीब्यूशन इन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है किसी भी एक गैस से, हम उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। दिस इज मोर लाइक एन इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है। For example, three people are pushing something in the same direction as a collaborative effort. तो हर बंदा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोर लगा रहा होता है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक पर्सन A, B and C are pushing a big block, ठीक है, in front of themselves। ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है। लेट्स सपोज ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये 12 की फोर्स लगा रहा है, ये 14 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स हमारे पास बड़ी इजीली आ जाती है। हम कह देते हैं टोटल फोर्स इज एक्चुअली सम ऑफ 10 प्लस 12 प्लस 14, ठीक है। लुक्स लाइक अ फिजिक्स क्लास, नॉट अ केमिस्ट्री क्लास, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि हम इनको सिंपली ऐड अप कर देते हैं। दिस इज व्हाट पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है। फॉर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमारे पास गैसेस अपना इंडिविजुअल प्रेशर मेंटेन करते हैं, चाहे वो सेपरेट होती या चाहे वो मिक्सचर में होती। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ। लेट्स से कि गैस ए अगर बिल्कुल इंडिविजुअल होती, अलोन होती, तो हमारे पास उसका प्रेशर 8 पास्कल्स बनता है, और गैस बी का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर 3 पास्कल्स बनता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट। जब हम उनका मिक्सचर लेंगे तो टोटल प्रेशर 11 के इक्वल होगा, और हर गैस अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर मेंटेन रखेगी, ठीक है। So this is what partial pressure means, and this is pretty simple because this is literally just addition, ठीक है। लेकिन हाँ, contribution number of moles के हिसाब से proportionate होता है। जिस गैस की जितनी ज्यादा अमाउंट होगी, टोटल प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। इमेजिन इसने इसे कितने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। उसने इसके 8 पार्टिकल शो किए हैं, उसे 8 पास्कल बनाया, इसके 3 पार्टिकल शो किए, इसे 3 पास्कल बनाया, और कंट्रीब्यूशन को इस तरह से सेम रखने की कोशिश की है ताकि आपको ये बात ज्यादा अच्छी तरह समझ आए। नॉट जस्ट रिलेटेड टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स दैट कि जिसका पास्कल 8 पास्कल प्रेशर है, एक्चुअली इसकी अमाउंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर गैस का इक्वल हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस का। we give it as P total is equal to PA plus B plus C, A B C इंडिविजुअल गैसेस हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस में हम इन्वॉल्व करते हैं पार्शियल प्रेशर्स। हम क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो वो सेम होगा उस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के जो हमने कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखा था केसी के हिसाब से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी लिखा करेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं एज सबस्क्रिप्ट टू पी आफ्टर राइटिंग पी ऑफ कोर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के हम एक पावर के तौर पे लिखते हैं पी के, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज की जाती हैं, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज की जाती क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स लिटरली कॉन्सेंट्रेशन और मोल पर डेसिमीटर क्यूब को शो कर रही होती हैं, ठीक है। और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंबल केपी के साथ लिखा जाता है, केसी कंसिडर नहीं किया जाता। तो पुटिंग ऑल 5 ऑफ दीज इनटू प्लेस, आप नोटिस करें गैसेस के लिए रिएक्शन बड़े आराम से आ गया। केसी में आया, केपी आ गया 1, कोई स्क्वायर ब्रैकेट इसमें यूज नहीं की गई 2, आपने पी का लेटर पार्शियल प्रेशर को डिनोट करने के लिए यूज किया 3, आपने गैसेस को एज सबस्क्रिप्ट टू पी लिखा है आफ्टर राइटिंग पी 4, और फाइनली गैसेस का जो भी नंबर था हमने उस पावर पे उसे रेज कर दिया 5। तो 5 चेंजेस, इजी राइट। तो एक वर्कड एग्जांपल देखते हैं। आपने यूनिट्स भी केपी के डिड्यूस करने ना। दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखना, उसकी वैल्यू निकालना या उसके यूनिट्स निकालना, ये कॉमन काम है, हमने पहले भी किया है, तो हम फिर कर रहे हैं। तो उसने एक इक्वेशन दे दी और हमें इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, और ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। वैल्यू के लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं, और ना भी हो तो हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। So their units work in the similar way. What he's trying to tell you over here is that कि अगर आपके पास, अब नोटिस करें, मैं ध्यान से वही चीज जो मैंने केसी में दिखाई थी मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम और प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, यूनिट्स पास्कल या पास्कल की स्क्वायर नंबर्स में स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 4 5 6 इस तरह से टर्न आउट होंगे।
नोटिस करें रिएक्टेंट्स ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 3 हैं, ये 2 है, ये +1 है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स कम हैं, तो आपके पास पास्कल जो होगा वो अपने इनवर्स यूनिट्स में आएगा, -1, -2, -3, so on and so forth। जितना डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान उतना आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? 1 का, तो पास्कल इनवर्स आया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना था? NO2, ये 2 था, ये 1 था, तो पास्कल सिंपली 1 आया था, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता? लेट्स से इक्वेशन यूं होती, ठीक है, तो ये क्या होता? ठीक है, लेट्स से इक्वेशन यूं होती कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो, रिएक्टेंट जो है वो 1 है और प्रोडक्ट 3 है, तो ये क्या होता? सॉरी, माय बैड, द डिफरेंस इज 2। ठीक, तो लिटरली हम उसके डिफरेंस पर उसकी पावर पर उसे रेज कर देते हैं। अगर रिएक्टेंस ज्यादा हो प्रोडक्ट कम, तो आपके पास क्या होता है? वो नेगेटिव में रेज होता है, और प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम तो वो पॉजिटिव में रेज होता है। और अगर दोनों इक्वल हैं, लेट्स सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो देन नो यूनिट्स, इट्स प्रीटी सिंपल। ठीक, तो ये बिल्कुल केसी की तरह है, जैसा काम हमने केसी में किया था एग्जैक्टली वैसी चीज कर रहे हैं। तो ये पूरा लिखना और बच्चों की तरह काटना, फॉर स्टार्टर्स इट माइट बी द राइट थिंग, बट एज सून एज यू गेट अ ग्रास्प ऑफ इट, बी प्रोग्रेसिव, ठीक है, बिकॉज इफ यू डोंट प्रोग्रेस यू गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम गेटिंग टुवर्ड्स द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अगर प्रोग्रेसिव एक्शन क्या है, यहाँ से नंबर्स देखें, उन्हें कर लें, नंबर्स का डिफरेंस निकालें, आराम से वो पावर रेज कर दें, डोंट गो थ्रू द होल थिंग, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बेशक समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए तो हम जरूर बताते हैं, लेकिन फास्टर वर्किंग के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो यूनिट्स ऑफ केपी क्या होते हैं? यूनिट्स हमारे पास प्रेशर के पास्कल होते हैं। यूनिट्स केपी के डिपेंड करते हैं फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के। स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर के पास्कल हैं हमारे पास। एटमॉस्फेयर में यूनिट के डिफरेंट यूनिट्स भी यूज होते हैं। हम एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक यूनिट्स भी यूज करते हैं, वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के लिए होते हैं। ये हम उसकी एक रिप्रेजेंटेड फॉर्म है। Actually, it's equal to 101.325 pascals to be exact, but how do we change it? We keep it 1.01 into 10⁵ pascals, ठीक है, to keep it close, हम ये कहते हैं। एटमॉस्फेयर यूनिट सिंप्लीफाई कर देते कैलकुलेशन को, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े नहीं होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यूनिट्स टीए हों, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यूनिट्स एटीएम हों, और एटीएम यूनिट्स वाले आपको हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादातर इसी के होते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप भी जाएं तो फिक्र नहीं करनी है, सारे एटीएम्स ही होंगे, वो एटीएम्स ही कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इट शुड बी इजियर दैट वे। अगर आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो इन इक्वेशंस को देखकर आपको आइडिया हो सकता है कि इसके केपी के क्या एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, और उसमें उसके बाद उसके यूनिट्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस पार्शियल प्रेशर वाली, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर SO2 का ये है, ठीक है, O2 की वैल्यू भी है, SO3 की वैल्यू भी है। हमने पहले एक्सप्रेशन लिखा, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाल ली आंसर के लिए, यूनिट सेपरेटली सॉल्व कर लिए, वो भी हमारे पास आ गए, तो केपी पूरा सॉल्व हो गया। ये लिटरली बहुत आसान था, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन केपीज के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते, ठीक है। मूविंग ऑन, नंबर 10। इस कैलकुलेशन में हम पार्शियल प्रेशर 2 आउट ऑफ 3 गैसेस के लिए मिक्सचर में दिया हुआ है, और टोटल भी दिया हुआ है। जब टोटल हो तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज आ जाती हैं, बिकॉज सम टोटल के इक्वल होता है, तो शुडंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर टोटल प्रेशर जो है वो इसका ये है, ठीक है। नाइट्रोजन इतना बनता है, हाइड्रोजन इतना बनता है, अमोनिया नहीं दिया हुआ। अमोनिया फाइंड आउट करने के लिए उसने सिंपल एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, टोटल से बाकी सबकी वैल्यू फाइंड निकाल दें, अमोनिया की वैल्यू आ जाएगी। अगेन एक्सप्रेशन लिखें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालें, यूनिट्स निकालें, इजीली सॉल्व अप हो जाएगा, ठीक। उसी तरह उसने क्वेश्चन भी किया हुआ है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स की तरतीब से हाइड्रोजन का, आयोडीन का, और उसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो उसने एक वैल्यू जानबूझ के मिस की हुई है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का गिवन हो और इसका गिवन हो, तो फिर हमारे पास किस तरह से इसको वर्कआउट किया जा सकता है, ठीक है। तो
कुछ और क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें, तक होंगे तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, फाइनली पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रीवियसली वी हैव बीन डिस्कसिंग कि आपके पास पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होता है टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन किस तरह से, वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल्स क्या है, उस सिस्टम को आपसे आपको फेमिलराइज किया जा रहा है उस सिस्टम से, एंड दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। Okay, before I move forward, remember the word fraction is about simply a division number, ठीक है? And just like the percentage is a multiple of 100, the fraction itself is just a multiple of 1. हमें उसे किसी और चीज से multiply नहीं करना होता। So mole fractions is just a fraction, ठीक है? Let's explain it. Number of moles of gas proportional होता है volume of gas at constant temperature, something that we have studied as a law, Boyle's law, back in chapter number 5, states of matter. आपको पता होगा कि वॉल्यूम जो होता है गैस के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने ज्यादा गैस मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉलो करता है बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन गैस की किस रिलेशनशिप से दी जाती है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी पर्टिकुलर गैस के divided by total number of moles of all the gases in a mixture. So, mole fraction ammonia की mixture में contain करती है 0.5 ammonia, 0.9 mole hydrogen and 0.6 mole nitrogen. तो हमारे पास mole fraction कैसे निकालेंगे इससे? ये बहुत सिंपल सा तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का। इट्स सो इजी कि आप इसी को ट्विस्ट करके कुछ और भी कर सकते हैं। कैसे? पार्शियल प्रेशर रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन बाय द रिलेशनशिप पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। ठीक है, so that's what we have actually been doing. अगर आप इस टोटल वैल्यू को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसे उठाकर इधर भी ले आएंगे तो भी इसके आंसर उसी तरतीब से आते हैं, चाहे ऐसे सॉल्व कर लें चाहे वैसे सॉल्व कर लें। ठीक, तो एक्चुअली इसी एक्सप्रेशन को मूव किया हुआ तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। रिमेंबर, ये पार्शियल प्रेशर था, ठीक है, आई एम गोना राइट इट एज पीपी, दिस इज पीपी। ठीक है, ये सारे का सारा मिला के टोटल प्रेशर था, आई एम राइटिंग इज एट टीपी एंड दिस इज टीपी। ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन है, आई एम राइटिंग इज एट एम एफ एंड दिस इज एम एफ। So this clearly tells us that if we're going to multiply mf with tp, we are going to get pp as an answer. तो इस टोटल को 0.25 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0.5 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप ऐसे यूज कर लें किसी एक की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, या पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज कर लें। जब मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर दिया हो एक ही बात है। अब आपको अंदाजा होगा क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं होगा, आप नहीं निकाल सकते होंगे सब्ट्रैक्शन वाले तरीके से, लेकिन मोल फ्रैक्शन या टोटल गिवन होगा उस तरीके से निकल आएगा। तो another kind of question twist that Cambridge can make. ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिएक्शन मिक्सचर में टोटल प्रेशर के लिए और वैल्यू ऑफ केपी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस एड अप होती हैं 1 के लिए, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एड अप होते हैं टोटल प्रेशर के लिए। ठीक है, वर्क एग्जांपल नंबर 10 में हमने एक्सपेरिमेंटल फिगर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किया। ठीक है, but if we kept all the figures to most accurate possible in our calculators when doing the working, the values should add up correctly. ठीक है, जितना accurate इसे करेंगे उतना ही total add up होगा। Sometimes मैंने देखा है कि बच्चों का जो addition होता है वो instead of 1.00 आने के 0.99 आ जाता है। तो मतलब आपने कहीं accuracy पे थोड़ा सा किया है तो 0.01 is handleable। ठीक है, या 1.01 आ जाता है, राउंड ऑफ करते चले जाते हैं हर वैल्यू की फॉर्म तो के आंसर वाइंड अप हो जाता है 1 से भी ऊपर। तो जितना अच्छा आप एक्यूरेसी का हाथ रखेंगे, ठीक है, उतना ही ठीक तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। However, this is actually acceptable। जरूरी नहीं है कि खींच तान के आप 1 कर रहे हो, समटाइम्स सिर्फ थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ करने से ही हमारे पास आंसर 0.99 या 1.01 आ जाते हैं, विच इज एक्सेप्टेबल बाय द वे। ठीक है, वर्क एग्जांपल देखते हैं। Equilibrium between hydrogen iodine and hydrogen iodide, all of them are gases, 600 केल्विन पे शो किया जा रहा है।
नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट जो हैं वो तीनों के लिए बता दिए गए हैं, टोटल प्रेशर बता दिया गया, केपी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बनते हैं, ये बनते हैं। हमने हर एक के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स को टोटल से डिवाइड किया है, हमने हर एक की मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ठीक, अब आप नोटिस करें कि इस काम को एक्यूरेट करने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो 3 नहीं 4 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अपनी सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं और एंड वाला आंसर जाकर वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे देगा। So if you have to work with 4 significant figures throughout your steps, right before the last step, and in the last step you round it off to 3 significant figures, this is a very good practice in terms of quality and accuracy both. ठीक है, वैसे जरूर करें। पार्शियल फ्रैक्शंस आ दें, पार्शियल फ्रैक्शंस को आप जो है ना मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपके पास हर एक के लिए आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, केपी का आंसर निकाल लें। ठीक है, आई थिंक इट्स प्रीटी इजी एंड सिंपल, क्योंकि हम इससे पहले इसके लिए पढ़ चुके हुए हैं। टोटल प्रेशर 100 था, हमने हर एक की मोल फ्रैक्शन को जैसे जैसे टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए। वंस वी हैव द पार्शियल प्रेशर, केपी क्वेश्चन के अंदर वो लिख लें, केपी का आंसर आ जाएगा। सो यू अंडरस्टैंड के क्वेश्चंस इस तरह से भी फॉर्म हो सकते हैं कि बगैर आपको कोई पार्शियल प्रेशर बताए, ठीक है, सिर्फ टोटल प्रेशर बता दें और नंबर ऑफ मोल्स बता दें, तो मोल फ्रैक्शन आप खुद कैलकुलेशन करें, पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन खुद करें, लीडिंग ऑन टू केपी की कैलकुलेशन खुद करें। ठीक है, एंड यू विल सी मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस। ऑलराइट, दिस कंप्लीट्स 8.42, लेकिन अब हम 8.5 इंटेंशनली खुद नहीं कर रहे आज।